Krishna Krishna Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Hare, Hare Ram Ram Hare Hare। मुझे लगता है कि फ्रांस की हमारी गुरु बहन रेवती देवी आज आ गई होंगी ऑनलाइन। It's 19 hours. अगर रेवती देवी जी शुरू करें तो बड़ा अच्छा है। कैन यू हियर मी रेवती? हरि बोल। Hare Krishna. Yes, I can hear you, Prabhuji. Yeah, you can speak, and if you have some Hindi words, that will be most appreciated. Otherwise, you can speak in English, French, German, whatever you want. I don't speak much Hindi, Prabhuji. I think you will make fun of me if I speak in Hindi. Okay. Namo Vishnu Padaya Shri Gaur Priyamurtaye Srimate Bhakti Vallabha Tirtha Goswami Namini Pancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhobhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo. Hare Krishna, dear devotees, Vanchakalpam, please accept my obeisances. I feel very blessed to be here, and because I feel that Guru Maharaj is in all of your hearts, and I saw there's like 80 people participating, and I feel it's like Guru Maharaj is in the heart of all you 80 people, and giving me the chance to remember him. So I didn't have as much personal association with Guru Maharaj because of living in France and everything. But every time I got the opportunity to see Guru Maharaj, he made that moment so such an impact on me that I feel that Guru Maharaj has always been with me. Even though if I count how many times it wasn't constant, but those times just made my whole life just merge into association with Guru Maharaj. I already spoke before, so I won't go into the history of my meetings with Guru Maharaj. But what I want, sorry? We are not aware here in Hindi world, we are not aware what you spoke in that meeting. Acha. Whatever you want, you can speak. Okay. Always. Actually, the reason because the last time I start from the beginning. Start from the beginning. Yeah. Okay. So I met Guru Maharaj in 2001 in America, and actually what I wanted to say was that one time Guru Maharaj gave a Harikatha, and he was saying how he feels that this bhajan, Emana Durmati, he feels that it really refers to him. And I feel the same way. I feel like Guru Maharaj, I was completely lost in this material world. Even I was born as in a family of Vaishnavas. My father and mother were both disciples of Srila Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. And I was born in a Vaishnav surrounding, but I felt that when I met Guru Maharaj, it's like the pot of honey. I had the pot of honey, and I feel like Guru Maharaj opened the pot of honey and made me taste it. So I had all the Vaishnav association. I had lived in Vrindavan. I had read all the books, not all of them, but my father would teach us every day. And after meeting Guru Maharaj, after receiving initiation from Guru Maharaj, it's like he turned on the flashlight and made me realize the glories of the Holy Dham through his teachings in Kartik, through glorifying the Holy Dham and the Leelas of Radha and Krishna, and Mayapur also, Navadvip Dham. I lived in Mayapur also when I was small,
But after meeting Guru Maharaj, it's like I realized the glories of everything I had been given. And so I also feel that even though I was born in this Vaishnav environment, I was still very much covered in this material atmosphere, and Guru Maharaj took me out from it. And he always, for me, emphasized the importance of this human birth. One time I went to Calcutta, and I went for getting prasad, like everybody. Guru Maharaj would go and give everybody some prasad. And he was so kind. He would always, because I had my children with me, so he would say, "Oh, be careful. This is very spicy." And like he would say, "Be careful, maybe for the children it will be spicy." So very, very caring. And I would see also when it was winter time, he would tell the devotees, "Banana is very cooling. You should cook it." So in winter now, when I have bananas, I think, oh, Guru Maharaj would like us to cook it. Or apples also. And he gave so many instructions like this, which is so nice because it makes me able to remember him in some small situations. Like during my Harinam initiation, for example, he told me to cut my nails very short. So now when I cut my nails, I remember Guru Maharaj, because he was saying that if our nails are long, then when we do Achman, if our nails touch the water, then he said, what can be done? Then we cannot use it for worshipping Supreme Lord. So everything Guru Maharaj saw, everything in connection with serving Krishna, and nothing was separate. I definitely don't feel qualified at all to be able to glorify Guru Maharaj, because he is so beyond this world and beyond my mental intellect. So I feel like a dwarf trying to catch the moon by trying to glorify him. But I can just share what I have received. So I met Guru Maharaj in 2001 in America, and like I was saying last time for the other Zoom meetings, I feel so blessed because Guru Maharaj gave me seva even before having initiated me. And so I feel very, very blessed because we usually give service to somebody that we accept as our own, to people who we feel close to. And so Guru Maharaj indirectly gave me seva to organize his Californian tour. And Prabhuji, you were there also. I remember you very well. And so I had, because I was secretary for Ramdas Prabhu, and so I helped organize Guru Maharaj's tour in California. And Guru Maharaj came, and the whole house where we were living just transformed, completely transformed. And the devotees were there, and there was this amazing kirtan. That was the first time I saw Guru Maharaj's kirtan. I experienced Guru Maharaj's kirtan, and it was out of this world. One phrase I would always refer to Guru Maharaj is a taste of transcendence. Like the book that was written with Guru Maharaj's teaching, A Taste of Transcendence. For me, that's Guru Maharaj. Everything he gave, or just what he was, just made me have a taste of what is this transcendence. And so yeah, his teachings for me are always go deeper, become serious, and whatever you do. Like one time I went to Calcutta, and he told me after giving prasad, he said, "Come back after, I want to speak to you." I was surprised. I was like, okay. So I came back, and I was in the room with Guru Maharaj, and I'm sitting in front of Guru Maharaj. I was thinking, who am I? I always felt so, how to say, like insignificant. I always felt, Guru Maharaj initiated me, but he probably doesn't really know me, or I'm just not important. I was thinking, why would he waste his time on me? He's an acharya. He has so many things to do. But Guru Maharaj took care of every single person. It's like I've been hearing a lot of God brothers and God sisters saying how Guru Maharaj has this capacity of making each and every one of us feel special. And he's not limited. He can expand himself into as many disciples and even non-disciples as there are. And he gave me this personal
his time. And he told me, and so I was surprised. I was thinking, what is he going to tell me? And he told me, this human life is very rare. And I had heard Guru Maharaj say this many times. So I was kind of surprised. Why is he telling me this? I've heard this in Harikathas. He could have told me in Harikatha. But Guru Maharaj just is like he needed to just shake me, wake up, wake up. And he said, this human life is very rare. And so I'm saying, yes, Guru Maharaj. And he even came forward. He's sitting on his chair and he leaned forward to really make sure I was understanding what he was saying. And he said, this, because this Kali Yuga is very rare. Also, Mahaprabhu has appeared in this Kali Yuga, and there's this many species of life, and human birth is a very rare species, and it is meant only for Hari Bhajan. So I was like, yes, Guru Maharaj. And the more he was speaking, the more it was becoming profound, and I was understanding the gravity of the situation. It's like it's just cleaning off so much dirt from me. And so this is like one teaching that I feel he's just been like really like getting into me. Wake up, wake up. And an amazing thing that happened was that on the 6th of January, Guru Maharaj came in my dream. And it's funny because that's the day of my birthday, the day I was born, and Guru Maharaj appeared in my dream. And I just remember I'm walking and Guru Maharaj is there, and his presence was just so peaceful, and it was like light and so brilliant. And I kept hearing this verse, Labdva Sudur Labham, Labdva Sudur Labham. And he wasn't speaking it, but the words were just emanating and entering into me. And I just took out my diary because when I woke up, I was so shocked, and I wrote it down. I just want to read if I missed anything else that. I just remembered there was this light, and Guru Maharaj was walking beside me, and internally I kept hearing Guru Maharaj say Labdva Sudur Labham. And when I woke up, I found the verse, and it's the same teachings Guru Maharaj is saying. After many births, this human birth, it's very rare to achieve this human life. So Guru Maharaj just even when I'm sleeping deeply, profoundly in ignorance, Guru Maharaj is there to wake me up. So I'm just so grateful to Guru Maharaj. He's just like a Guru Maharaj like this. I can have never ever dreamt of having such a Guru Maharaj. I just feel so blessed. I don't know what I could have possibly done for Guru Maharaj to have grabbed me grabbed me out of this world. I just feel so thankful, and I really pray that I may be able to purify my existence and make this human life worth it. Purify myself that I may be able to serve him and I may be able to please him. This is my only desire, that I may just be able to please Guru Maharaj, and that I may even realize what it means to please Guru Maharaj. And I know, like from what he told me, I asked Guru Maharaj, I said, please give me what service can I do for you, Gurudev? And Guru Maharaj said, you chant from the core of your heart. So I'm trying, and I pray that devotees can also bless me, because I have committed many offenses, knowingly and unknowingly. And it's only by the mercy of the Vaishnavas and Gurudev that we can be freed from these. And I also want to say Guru Maharaj is just so present and loving everywhere. And I remember when Guru Maharaj was giving his darshans on internet every morning, when they would take him out and there was bhajans. And so I would wake up early morning to have darshan of Guru Maharaj. And sometimes I had some questions in my mind. And the bhajan that was chosen at that time would answer all my questions. So Guru Maharaj is just capable. He's just not limited, unlimited. He can answer questions through so many different things, through the bhajan. And what's interesting, I often noted, was that if I wasn't paying attention, the video would cut, the connection would cut off. And then I would be like, oh no. And then once I would go back, the internet connection would come back on. So it's almost like Guru Maharaj was saying, pay attention, pay attention.
what more can I say? This is so wonderful to be able to listen to all of you, and I feel that now I have Guru Maharaj's association through all of you, Vaishnavas, and I hope to be able to see all of you in person in India at Mayapur Dham or Vrindavan Dham. That would be very, very wonderful. Thank you very much, Prabhuji. Hare Krishna. Dandavat pranam. रेवती, आपने उस दिन बताया जैसे जब गुरुजी रामदास के घर में कीर्तन किया सब लोग नाचने लगे, हाँ, वो ये लोग सुनेंगे वो कैसे हुआ जिसमें वो भी आए थे इस्कॉन के कौन महाराज राधा Shri Radhanath Maharaj. हाँ, वो बात सुनाओ अच्छा ठीक. So yeah, so in this हिंदी मेरा हिंदी तो इतना अच्छा नहीं है प्रभुजी. I feel shy. So we were at Ramdas Prabhu's house. It was during Rath Yatra time in San Francisco, and Srila Radhanath Maharaj was invited. So Guru Maharaj was sitting, and Srila Radhanath Maharaj was sitting, and Srila Radhanath Maharaj gave one Harikatha on Chaitanya Charitamrita, and he spoke on the pastimes of Mahaprabhu. And so it was very nice. We were sitting, and he was speaking about the kirtan of Mahaprabhu. And then Guru Maharaj thanked him very much, and so humble. Guru Maharaj was so humble. And then Guru Maharaj started his kirtan. And so like it was that, okay, Radhanath Maharaj was giving the introduction. This is how Mahaprabhu's kirtan is. But then Guru Maharaj showed this is what Mahaprabhu's kirtan is. It's like he turned on the TV. All of a sudden it just became alive. Guru Maharaj was, and I had never ever experienced such kirtans before. I was born, like I was saying, in a Vaishnava family. I grew up in Vrindavan, Mayapur, everything, but I had never ever experienced such a kirtan in my life before. And Guru Maharaj was sitting there, and I'm sure most of you have seen Guru Maharaj does like this with his fingers. Jai Dao, Jai Dao, and everybody goes completely crazy and just starts jumping, and I was jumping and jumping, and I didn't even know I was jumping. I just, like, my soul was there, but my body was just moving and moving, and I just thought this is amazing. And I was looking around the room, and the whole room was moving, and all the devotees were just jumping and flying. And it was just an incredible experience. And I felt like I was jumping so high. I was high up, and I was looking down and seeing Guru Maharaj in the middle with the devotees surrounding him. It was just an amazing scene. It can sound like I'm crazy saying this, but Prabhuji asked me to share, so I'm sharing. And it was really an amazing experience. Guru Maharaj showed me what the real kirtan was. ठीक है प्रभु जी और कुछ You said you were not using your muscles. Yes, it was amazing. I didn't even know when my feet were pushing on the floor to go up. My body was just jumping on its own, and it was so light. My body was just light and just flying. Actually, it was just flying, and my eyes were closed because I was just in this ecstasy. And then at some point my intellect came back on and was wondering what is going on. And so I opened my eyes and I was looking around, and I saw that everybody was jumping also. And I'm thinking, is everybody feeling how I'm feeling? It was just absolutely amazing, amazing. Yes. And now, after 3 years, we are remembering Guru Maharaj. What is your feeling now? I feel very sad, actually. Like before Guru Maharaj left, also it had been 3 years before that he was already preparing us that he was leaving. And so actually for me it's been 6 years that I've been missing Guru Maharaj, because I always felt afraid. Actually, whenever I would receive emails from Prahlad Prabhu,
I was so afraid. When I saw Prahlad Prabhu's name come up with an email about Guru Maharaj's health, I was always afraid. And then when I would open it and I would see, oh, Guru Maharaj is actually fine, then I would be happy. And then every morning when we would have Guru Maharaj's darshans, also that would also be nice, because I was like, oh, Guru Maharaj is still here. And then at the last the moment in April when they said that Guru Maharaj was performing his leelas more seriously, it was very, very stressful. And inside I was hoping, okay, it will just be like those other emails that, okay, Prahlad Prabhu will send another email saying everything's fine. But no, it didn't. And I don't know, like I actually try to forget about actually these moments of, like, I have a hard time watching the Samadhi video, or it's just so painful. And at the same time, it's strange because it's painful, and at the same time, I feel Guru Maharaj is present so strongly. I feel Guru Maharaj is present in my house. I feel he's with me. I feel he's with all of you. And so it's strange because I feel the separation and I feel this closeness at the same time. So I don't know how to explain. It's actually because I feel the separation of not being able to see him physically anymore, and also because maybe because I'm far, whereas like people who live in Mayapur or Kolkata, for them maybe they will feel it more strongly, because I think like Srivas Thakur, when Mahaprabhu left, he had a hard time living in Mayapur because everything would remind him of Mahaprabhu. And so like I remember one year I went to Mayapur, this was in 2015 I think, and I went to Mayapur and I felt so sad because I was thinking we will never have Guru Maharaj's darshan in Mayapur ever again. And I just remember crying all the time. I don't know why, like just I would just keep crying, and devotees were asking me what's going on, and I was like, don't you feel sad? Don't you feel sad that Guru Maharaj, and Guru Maharaj was there in Calcutta, but I was saying we'll never see Guru Maharaj in Mayapur ever again. And one day I was feeling so sad like this, and parikrama was going on, and I was just thinking, we're having parikrama, but Guru Maharaj is not there. And I went out, and then I saw Guru Maharaj looking at me on this big poster where, we carry these banners of Guru Maharaj and Param Gurudev. And so I was feeling so sad, and I came out and I saw Guru Maharaj on this poster looking at me. He has this beautiful smile with such affectionate glance. And I just felt like, oh, Guru Maharaj, actually you are still here. So I'm really looking forward to going back to Kolkata and Mayapur and feeling this connection of Guru Maharaj in the Dham, even though he's not physically present, because I was used to going to see Guru Maharaj physically when I would go to India. So yeah. Have you been to Gwalpada Dham? No. So then next after you, we are going there, Gwalpada, and we will hear from Gurudev's birthplace. His Gurudev's nephew, Abhimanyu, he will also speak now. And for Vrindavan Chandra, he will also speak. So let us go to Gwalpada. Thank you very much. Hare Krishna. Jai Dandavat Pranam. हाँ जी प्रभु जी, शुरू करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ करिए। जय श्री श्री ग्वालपाड़ा धाम की जय। जय श्री श्री गुरुदेव जी की जय। जय हो। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावन्याय कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुषे नमः। सप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुत देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा नमोस्तुते। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशव सच विष्णु भक्ति पददेवी सत्पते नमो नमः। सभी वैष्णव के, मेरे गुरुवर के, सभी के वैष्णव के चरणों में दंडवत प्रणाम। आप सबकी कृपा से, आपके आशीर्वाद से मैं ग्वालपाड़ा धाम में सेवारत हूँ। यहाँ मुझे गुरु जी के धाम की सेवा मिली है, और यहाँ मठ के यहाँ सब जो भी सेवा है हम कर रहे हैं। मैं आपको उस दिन की बात को कंटिन्यू करूंगा जब तपस्वी महाराज जी ने बताया था कि गुरु जी ओमनीपोटेंट है।
गुरुजी ओमनीपोटेंट है, मतलब गुरुजी सब जगह पे हैं, लीला कर रहे हैं। जैसे कि उन्होंने प्रभुपाद की बात बताई, प्रभुपाद जी सार्वभौम में कहते हैं, मैं हर साल वहाँ वो व्यास पूजा में आता हूँ। तो ऐसा मैंने सुना है वो कभी आए नहीं, लेकिन फिर भी ना आने के बाद भी वो हर साल वहाँ आते हैं। ऐसे हमारे परम गुरु जी ने उनके बात पे विश्वास किया। तो वैसा ही हम लोगों पे भी गुरुजी ने कृपा की है, बॉम्बे वालों पे। हमारे बॉम्बे में रथ यात्रा होती है, 2002 से रथ यात्रा शुरू है बॉम्बे में। तो हमने गुरुजी की परमिशन से, गुरुजी की आज्ञा से रथ यात्रा बॉम्बे में चालू की थी। तो जैसे-जैसे रथ यात्रा प्रोसेस होता है, 2002, 3, 4, 5, 6, 8, हर साल गुरुजी को निमंत्रण भेजता था बॉम्बे में, रथ यात्रा है, आप आओ। तो गुरुजी को निमंत्रण मिलता था। ये 2009 की बात है, जब मैंने निमंत्रण भेजा, तो ये निमंत्रण मिला सन्यासी महाराज जी को। वो मठ रक्षक थे वहाँ पे। तो सन्यासी महाराज जी ने निमंत्रण पढ़ा, और वो जैसे उन्होंने पढ़ा, तो शायद 1-2 बजे का टाइम था। तो गुरुजी ने प्रसाद पाने का टाइम था, या गुरुजी अपने रूम में कथा कर रहे थे। सब सेवक बैठे थे, उसमें मिश्रा जी भी थे। हमारे जम्मू के मिश्रा जी भी वहाँ बैठे थे, और प्रिंस, संदीप, और भी जो उनकी सेवा में थे, सब वहाँ बैठे थे। गुरुजी वहाँ कथा कर रहे थे। गुरुजी ने वहाँ कथा की, ऐसे ही मतलब उनको बस समझा रहे थे। इतने में सन्यासी महाराज जी आए, गुरुजी के पास आए। सन्यासी महाराज जी ने गुरुजी को बोला, "गुरुजी, ये लेटर आया है, बॉम्बे से निमंत्रण आया है।" गुरुजी ने पूछा, "ये क्या निमंत्रण है?" तो सन्यासी महाराज जी ने बोला, "बॉम्बे में रथ यात्रा पे आपको बुलाया है।" तो गुरुजी ने निमंत्रण हाथ में लिया, तो गुरुजी ने बताया, जब भी पढ़ा, उसको देखा, तो गुरुजी बोलते हैं, "हम तो हर साल रथ यात्रा में जाता है बॉम्बे।" वहाँ जितने बैठे थे, सब लोग शॉक हो गए। गुरुजी हर साल पुरी में जाते थे रथ यात्रा पे। तो ये गुरुजी क्या बोल रहे हैं हमें? हर साल बॉम्बे रथ यात्रा में जाता हूँ, और गुरुजी कभी बॉम्बे गए ही नहीं। तो ये हमारे गुरुजी की लीला है। जैसे ओमनीपोटेंट बोला है, उसको मैं ब्रीफ कर रहा हूँ। ये हमारे गुरुजी वहाँ आते हैं हर साल। उस दिन के बाद हम लोग बॉम्बे वाले ये समझ के, जब ये रथ यात्रा शुरू होती है, हम यही अपने गुरुजी के सानिध्य में रथ यात्रा कर रहे हैं। हम लोग आज भी, अभी भी, गुरुजी नित्य लीला में चले गए, तभी भी गुरुजी वहाँ आते हैं, किसी वेश में भी आते हैं। तो वहाँ बैठे थे मिश्रा जी। मिश्रा जी ने वहाँ से बाहर निकले, तो मेरे को फ़ोन किया वहाँ से, "लांबा जी, आप तो धन्य हो गए।" मैंने, "क्या हो गया? क्या बात होगी?" बोलते हैं, "आपके गुरुजी, आपकी रथ यात्रा को तो गुरुजी ने ऑथेंटिकेट कर दिया।" ऑथेंटिकेट करते हैं कैसे? मतलब गुरुजी ने उसपे मोहर लगा दी कि मैं आता हूँ, मतलब वो रथ यात्रा एकदम प्रमाणित हो गई अभी। तो ये रथ यात्रा हमारे गुरुजी ने स्टार्ट करवाई थी। मतलब मैं जब ये रथ यात्रा शुरू की थी, मैं नहीं बोलना चाहिए, जब ये रथ यात्रा का ये मेरे मन में कैसे आया, 2001 में हम लोग जन्माष्टमी मना रहे थे। जन्माष्टमी मना रहे थे, गुरुजी किसी को निमित्त चुनते हैं कोई भी सेवा के लिए। गुरुजी तो एकदम कृपालु हैं। मेरे कुछ काबिलियत नहीं थी। पता नहीं मेरे को कैसे गुरुजी ने प्रेरणा दी, बोला कि मेरे मुँह से निकलवा दिया कि 2001 में हम लोग जन्माष्टमी मना रहे थे। हमारी बिल्डिंग के अंदर कॉलोनी में मना रहे थे। तो मैंने वहाँ मत भी नहीं था तभी। मैंने डिक्लेयर कर दिया, हम ये अगले साल रथ यात्रा निकालेंगे। कमाल है। तो मेरे को मालूम ही नहीं रथ यात्रा कैसी होती है। मैंने जगन्नाथ जी की कभी फ़ोटो भी नहीं देखी, शायद आप लोगों को मैं बता दूँ। मैंने कभी फ़ोटो भी नहीं देखी थी जगन्नाथ जी की, कि ये कैसे होते हैं जगन्नाथ जी। लेकिन भाव पता नहीं कैसे आ गया, क्या लीला की जगन्नाथ जी ने, गुरुजी ने। मैंने डिक्लेयर कर दिया रथ यात्रा करेंगे। फिर 2001 में दिसंबर में गुरुजी आते हैं। हमने मतलब ऐसे मेरे दिमाग में चल रहा था कि रथ यात्रा करनी है, रथ यात्रा करेंगे, फिर गुरुजी के पास चला गया। हरे कृष्णा। फिर मैं गुरुजी के पास चला गया। गुरुजी को पूछा, महाराज जी, हम लोग बॉम्बे में ऐसे रथ यात्रा निकालने चलते हैं। आपको शायद मैं एक बात गुरुजी की बता दूँ, आप लोगों ने भी नोट किया होगा, गुरुजी कोई भी नया काम, नया प्रोसेस कोई भी स्टार्ट करने के लिए गुरुजी बहुत सोचते हैं, और तभी ही अलाउ करते हैं। जैसे कि किसी को मठ में कुछ मठ का एनलार्जमेंट हो, कोई नया मठ खोलना हो, कोई नई एक्टिविटीज़, गुरुजी बहुत सोच के बोलते हैं, हाँ, ये करो, नहीं करो। लेकिन बॉम्बे में मठ भी नहीं था। कैसे गुरुजी ने बोल दिया। मैंने गुरुजी को बोला, महाराज जी, हम लोग रथ यात्रा करना चाहते हैं। गुरुजी बोलते हैं, रथ यात्रा करना है तो उसी दिन करना। जिस दिन रथ यात्रा होती है पुरी में, उसी दिन करना। मतलब गुरुजी ने आज्ञा दे दी, अगर करोगे तो रथ यात्रा उसी दिन करना। फिर हमने गुरुजी की आज्ञा ले ली, तो गुरुजी ने, अभी ये दिसंबर में हुआ, फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून आ गया। जून में 12 तारीख को रथ यात्रा थी, 2002 में। तो हम लोग उसके 15-20 दिन पहले सब गुरु भाई मिले एक जगह। हमारे एकादशी का कीर्तन होता था, तभी घर-घर में मठ नहीं था। तो हम वहाँ बैठे थे, हमने सबने डिस्कस किया, ऐसा-ऐसा गुरुजी ने बोला था कि रथ यात्रा वाले दिन ही करना। तो उस दिन शायद फ्राइडे था, मेरे को थोड़ा बहुत याद है। तो सब गुरु भाई बोलते हैं, एक बोलता है मेरे को संडे को छुट्टी है, संडे को करते हैं। एक बोलता है मेरे को मंडे को, क्योंकि सब बेसिक नॉलेज उनको भी किसी को नहीं था। कोई जगन्नाथपुरी हमारे में से कोई नहीं गया था। हम लोग, कोई बोलता है मंडे को करते हैं। उन्होंने समझा ऐसी ही प्रभात फेरी होती है जैसे करते हैं। लेकिन नहीं, हमको किसी को कुछ भी नहीं मालूम था।
15 दिन पहले फिर, लेकिन मैंने बोला गुरुजी ने बोला है कि उसी दिन करना। हमने उसी दिन का प्लान फाइनल किया, मतलब कोई आएगा नहीं आएगा, हम उसी दिन करेंगे। हमने पैम्पलेट पोस्टर छपवा दिए, जगह जगह पोस्टर बांट दिए, लगा दिए, पैम्पलेट बांट दिए, घर घर में जाके हमने पैम्पलेट बांटा। मेरे को भी कुछ थोड़ा, मैंने फिर स्टडी किया जगन्नाथ जी के बारे में, थोड़ी लीला वो पैम्पलेट में बनाई, क्योंकि ज्यादा कुछ नहीं मालूम था, कीर्तन क्या करते हैं, आरती क्या करते हैं, नगर कीर्तन कैसे चलेगा, कुछ नहीं मालूम था। गुरु जी की लीला देखो, उतने में एक दिन पहले, रथ यात्रा के पहले हमने रथ भी बुक कर लिया। एक दिन पहले हमारे भगवान दास जी, मधुसूदन महाराज जी जो भी हैं, वो एक दिन पहले आ गए। बॉम्बे कभी भी आते थे, कोई ब्रह्मचारी आता था हम लोग को मिलने, देखने क्या चल रहा है बॉम्बे में, मठ नहीं था तभी। तो मधुसूदन महाराज आ गए, हमने उनको बोला ऐसे थे, हम लोग अरे, वो बोलते शौक हो गए वो भी, कहते हैं कमाल है, कुछ हमको बताया नहीं, किसी को पूछा नहीं, कुछ बोला नहीं, आप कर रहे हो। लेकिन फिर उन्होंने काफी समझाया, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, क्योंकि वो उन्होंने देखी थी। फिर उनके मतलब जो इंस्ट्रक्शन थी, थोड़ा उन्होंने बताया ऐसे करना, वैसे किया, फिर वो रथ यात्रा सक्सेस होगी। तो रथ यात्रा जो हुई बॉम्बे में जगन्नाथ जी का आना था, ये गुरु जी की कृपा से हुआ। हमारे गुरु जी इतने दयालु हैं, वो बोलते हैं ये बॉम्बे वाले हैं, ये इनको लीला, इनको ज्यादा समझ नहीं आएगी, तो जगन्नाथ जी को पहले ही भेज दिया मतलब उन्होंने। फिर मठ बाद में बना, पहले जगन्नाथ जी आए, रथ यात्रा हुई, बाद में मठ बना 2002 में। हमारी रथ यात्रा के बाद मठ बना नवंबर दिसंबर में। फिर ये उसके बाद रथ यात्रा कंटिन्यू हुई। फिर हमारे गुरुजी को जब ये निमंत्रण मिला, गुरुजी कहते हैं हम तो हर साल रथ यात्रा में जाते हैं। ये देखो हमारे गुरुजी कैसे बोला, ये सोचने की बात है। ये तो ये किसी ने ऐसे नहीं कि गुरुजी के बाद अचानक बोले, लेकिन गुरुजी ने वो लेटर पढ़ के सबके सामने इतना क्लियर बोला, मैं हर साल जाता हूँ। तो सोचो हमारे गुरुजी कैसी बात, मतलब इतने प्रामाणिक बोलते हैं कि ये बॉम्बे के रथ यात्रा में जाता हूँ। तो ये हमारे को मानना चाहिए, हमारे को इसमें लेना चाहिए कि हम लोग गुरुजी के साथ बॉम्बे में रथ यात्रा करते हैं। तो ये कृपा है हम बॉम्बे वालों पे गुरुजी की, कि उनको उन्होंने हमारे को बोला कि ये रथ यात्रा होती है, तो रथ यात्रा में मैं आता हूँ। तो हमारे के लिए ये बहुत, मतलब हम जो रथ यात्रा तो निकालते हैं, जगन्नाथ जी की सेवा तो करते ही हैं, साथ में हम लोग ये भी समझ रहे हैं कि गुरु जी हमारे साथ में हैं, किसी रूप में भी हैं, गुरु जी हाँ, वहाँ हैं। हम लोग यही समझ के रथ यात्रा, रथ खींचते हैं, गुरु जी के सानिध्य में, गुरु जी के अनुगत में हम लोग वैष्णव के अनुगत वो रथ यात्रा खींचते हैं। बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है। पहली रथ यात्रा में ही कम से कम 800,000 आदमी थे, फर्स्ट जो रथ यात्रा थी। तो सोचो गुरु जी की कितनी कृपा है कि उन्होंने बोला ये, मतलब ये बच्चे हैं, इनको ज्यादा नॉलेज नहीं है, गुरुजी ने हमारे को सब प्रोसेस बताया। मैंने पहले ही पैम्पलेट पोस्टर बना दिए, लोगों को भी लगा ये क्या है रथ यात्रा, पता नहीं। अभी तो ऐसा है कि लोग हमारे को फोन करके पूछते हैं तुम्हारी रथ यात्रा कभी है। तो ऐसा है प्रचार वहाँ। तो गुरुजी ने कृपा किया है, रथ यात्रा वहाँ चालू करवाई है, और गुरुजी वहाँ हर साल आते हैं, ये गुरुजी ने बोला है। और हमको भी इसको लेना चाहिए कि गुरुजी आते हैं। इस पे हमारे मिश्रा जी को बोलूंगा कि और थोड़ा इस पे अलर्ट करें, क्योंकि मैं ज्यादा नहीं बोल सकता कि गुरुजी की क्या भाव थे, गुरुजी की क्या लीला थी। इसमें मैं मिश्रा जी को बोलूंगा थोड़ा और बोले। मिश्रा जी आप बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। हरे कृष्ण। हमारे वृंदावन चंद्रदास विजय लांबा जी मैं समझता हूं कि ये वो व्यक्ति है जिन पे गुरु महाराज जी की बेहद कृपा है, बेहद कृपा। अभी हम सुन रहे थे ना, वो फ्रांस की रेवती देवी क्या बोल रही थी कि मेरा हरि नाम होने से पहले गुरु महाराज ने मुझे सेवा दे दी थी। जब वो गुरुजी अमेरिका गए, तो गुरुजी किसी को डायरेक्ट सेवा दे, ये बहुत बड़ी बात होती। लोग हरिनाम दीक्षा लेके ये सोचते हैं कि गुरुजी कोई एक सेवा हमें दे, और कई भक्त तो एकलव्य की तरह सोचते ही रहते हैं कि हमें कोई सेवा क्या मिली, कोई स्वप्न में सेवा मिलती है, कोई कुछ होता है। लेकिन साक्षात रूप में बड़े विरलों को गुरुजी की सेवा मिली है। और ये जो विजय लांबा जी बता रहे हैं रथ यात्रा की बात, ये मुझे लगता है सारी की सारी प्रेरणा गुरु महाराज जी ने दी। और मैं वहां पे था जब निमंत्रण आया बॉम्बे से के रथ यात्रा पे। तो मैं निमंत्रण लेके गुरुजी के कमरे में गया, क्योंकि उन दिनों अचानक से गुरुजी के जो सेक्रेटरी थे वो चले गए थे, और मुझे 2-3 मिनट में गुरुजी के पास सेवा का मौका मिला, उनका सेवक बनके। उन्हीं दिनों प्रसाद जी भी आए थे नए, तो हम दोनों मिलके वहां थे। तो जब ये गुरुजी ने निमंत्रण पढ़ा, तो गुरुजी के पास और भी कुछ लोग थे, सन्यासी महाराज जी भी थे। तो हमने गुरुजी को
एक्सप्लेन किया कि गुरु महाराज जी ये बॉम्बे से विजय लांबा जी वृंदावन चंद्र दास जी का लेटर है, इसमें आपको इनविटेशन है रथ यात्रा के लिए। तो गुरु जी कहते हम तो वहां हर साल जाते हैं। तो मैं हैरान हो गया कि ये स्टेटमेंट तो बड़ी इंपॉर्टेंट है। गुरु जी बोलते हैं मैं रथ यात्रा में बॉम्बे हर साल जाता हूं। अब मैं ये समझता हूं कि व्यक्तिगत तौर पे मैं भी बॉम्बे की रथ यात्रा अटेंड किया और वहां का जो माहौल देखा मैंने, इतना क्राउड, इतना वो तंग एरिया, कोलीवाड़ा, वहां गाड़ी नहीं चल सकती, बंदा भी नहीं चल सकता। तो वहां इतनी बड़ी रथ यात्रा निकालते हैं, वहां कहाँ के बैंड आते हैं, कहाँ के धुनें बजती है, कहाँ वो उत्साह होता है। मैं हैरान हो जाता हूँ। तो मुझे वहां प्रेजेंस लगी कि गुरु कृपा के बिना ये रथ यात्रा संभव नहीं है। तो मुझे लगता है कि बॉम्बे वालों पे गुरु जी की बड़ी विशेष कृपा है कि वो जैसे सार्वभौम में हमारे श्रीला प्रभुपाद जी ने कहा मैं हर साल आऊंगा, इसी तरह रथ यात्रा में बॉम्बे गुरु जी ने बोला मेरे सामने, मैं साक्षी हूं। तो बड़ी सौभाग्य की बात है। और आप कुछ और बोलेंगे? वो आए हैं? हाँ जी। वो नहीं आए, लेट हो गए वो अच्छा, कल आएंगे। तो अभी थोड़ा ग्वालपाड़ा की अभी आपने किस तरह से मनाया विरह तिथि, ये बता दीजिए। हाँ बताता हूँ, एक मिनट। अभी जो हम लोगों ने पहले सोचा था कि रामनवमी बड़े हाई स्केल पे होगी, गुरु जी की कृपा से हमने सोचा था कि ये सब मिश्रा जी के साथ पेपर पे प्लानिंग हुई थी बहुत कि हम लोग ये करेंगे वो करेंगे। हमने हॉल बुक कर लिया, हम लोग ने पुलिस परमिशन ले ली, काफी मतलब पेपर वर्क हमने कर लिया था। लेकिन जो ठाकुर जी की लीला, गुरु जी की लीला, हम लोग वो नहीं कर सके क्योंकि कोरोना वायरस आ गया। कोरोना वायरस आने से कोई बाहर से नहीं आ सकता था, यहाँ गैदरिंग कैंसिल हो गई। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि जैसा भी ठाकुर जी की, गुरु जी की मर्जी है वैसे ही करना होगा। पुलिस ने हमारे को बुला के बकायदा, इधर के डीसी है, उन्होंने मेरे को बकायदा बुलाया, कहते हैं आपको ये परमिशन नहीं दी जाएगी क्योंकि आप नहीं कर सकते। तो मैं बोला फिर अभी ठीक है, अभी नहीं करनी है तो नहीं करनी है। फिर हमने सोचा कैसे किया जाए। फिर हमने आदिवासी के दिन से ही फूड के पैकेट्स जहाँ लोगों के घर-घर में बढ़ना चालू कर दिया, ताकि फिर रामनवमी आई, रामनवमी पे हमने फल-फल बाँटे। फिर जब भी गुरु जी का उत्सव था, उस दिन हमने प्लान किया, कम से कम 150 घर में हमने गुरु जी का फूड पैकेट बाँटे। और भी फिर हम मतलब 8-10 दिन हमने फूड पैकेट बाँटते रहे, कभी 100 घर, 50 घर, 100 घर, मतलब काफ़ी दूर-दूर तक हमने ग्वालपाड़ा में ये पैकेट बाँटे। फिर हम लोगों ने सोचा कि अब फिर आया गुरु जी का विरह उत्सव, उस पे क्या करें? फिर हम लोगों ने विराट उत्सव पे भी फिर सोचा कि यहाँ के ग्वालपाड़ा गुरुजी ग्वालपाड़ा वालों से बहुत स्नेह करते थे। ये मैंने काफ़ी लोगों से सुना है, काफ़ी गुरुजी से जो एक्सप्रेशन में सुना है, गेस्ट हाउस में गुरुजी की क्या लीला थी, इधर धाम में मैंने श्रीधर प्रभु जी से भी सुना है, और भी ग्वालपाड़ा वासियों से, और भी फिर जब भी कलकत्ता में भी होते थे, गुरुजी ग्वालपाड़ा वालों से बहुत स्नेह करते थे। उनका कोई पहचान वाला ग्वालपाड़ा वाला या उनका कोई रिलेटिव, उनसे तो बहुत हृदय से प्रसन्नता होती थी। गुरुजी बहुत खुश होते थे ग्वालपाड़ा वालों को मिलने को। तो ग्वालपाड़ा वालों की एक मैं बात बता दूँ कि गुरुजी कभी भी सेवा करने में बहुत खुश होते थे, कि ग्वालपाड़ा वालों की कुछ सेवा की जाए। उन्होंने उस संदर्भ में एक यहाँ डिस्पेंसरी भी चालू की थी, यहाँ गेस्ट हाउस। जो भाव गुरु जी के हैं वही हमारे को लेके आगे चलना है, वही गुरु जी के अनुगत में हम लोग चल रहे हैं कि ग्वालपाड़ा वालों की सेवा की जाए। तो मैंने भी वही सोचा कि अभी गुरु जी का विरह उत्सव है, फिर हमने वहाँ प्रसाद प्रसाद बनाया, इतना हाइजेनिक तरीके से हमने वहाँ बांटा। लोग आज भी मतलब उस जो प्रसाद हमने बांटा ना, खास करके जो विरह उत्सव का प्रसाद बांटा, उसको लोग आज तक याद कर रहे हैं कि अपने कैसे पैकिंग की, कैसे हर चीज, क्योंकि यहाँ हम किसी को बुला नहीं सकते थे। मठ में 5 जन 6 जन से जाना अलाउड नहीं था, मठ पे केस हो जाएगा, पुलिस आ जाएगी। रामनवमी के दिन तो ऐसा था कि नीचे पुलिस बैठी थी हमारे गेट पे कि यहाँ कोई ना आए, यहाँ कोरोना वायरस का खतरा, क्योंकि तभी एकदम नया-नया था। तो हम लोगों ने यहाँ बाँटा, फिर गुरुजी ने प्रेरणा दी, हम लोगों ने सैनिटाइज़र बाँटने चालू किए, हम लोगों ने मास्क बाँटे हैं, 1000 के ऊपर हम लोग मास्क बाँट चुके हैं, अभी और भी और बनवा रहे हैं। आगे मतलब ग्वालपाड़ा वालों की सेवा करने का, जैसे मैं समझता हूँ मेरे को गुरुजी ने भेजा है, ग्वालपाड़ा वालों की सेवा करने के लिए भेजा है। हमारे साथ मिश्रा जी हैं, और भी हमारे दूसरे गुरु भाई हैं जो हमारे को सपोर्ट करते हैं इस काम में। हम लोग लगे रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, गुरु जी की सेवा कर सकें, गुरु जी को प्रसन्न देखो, हम गुरु जी को, हमारा और आपका सब जो ये सुन रहे हैं,
हमारा मकसद क्या है? गुरु जी को प्रसन्न करना, गुरु जी की प्रसन्नता। गुरु जी की प्रसन्नता किसमें होगी? जो हम गुरु जी के जैसे ग्वालपाड़ा के गुरु जी की सेवा करके ग्वालपाड़ा को खुश करके गुरु जी बहुत खुश होते थे। कोई ग्वालपाड़ा वाला मिलने आ जाए, गुरु जी के चेहरे को आप देखो, आप रीड नहीं कर सकते, गुरु जी इतने खुश होते थे। तो वही हमारे को देखना है। हमने ग्वालपाड़ा के जो धामवासी हैं, ये एक्चुअली धामवासी हैं, जो अभी-अभी स्टेशन का भी नाम कुलदीप जी ने तभी 2018 में अनाउंस किया था कि ये ग्वालपाड़ा धाम करना है, और गुरु जी की मेरे को प्रेरणा दी। मैं वो काम करने के लिए बॉम्बे से निकला था। मैं यहाँ ग्वालपाड़ा का इंचार्ज बनने के लिए नहीं निकला था, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी आ गई कि मेरे को यहीं रहना पड़ा। फिर यहाँ का नाम बदली करना है ग्वालपाड़ा धाम, वो भी हम करेंगे, गुरु जी की कृपा से करेंगे। सभी वैष्णव की प्रसन्नता के लिए मैं तो रोज गुरु जी से, ठाकुर जी से अरदास करता हूँ, प्रे करता हूँ कि ये गुरु जी हमारे को इस काम में सफलता दें। हम लोग सभी वैष्णव, सब गुरु भाइयों को, उनको सबको प्रसन्नता होगी जब ये हम कर सकेंगे। तो सबकी प्रसन्नता के लिए हम ये ग्वालपाड़ा की सेवा कर सकें, धाम स्टेशन का नाम बदली कर सकें। हम ये चाहते हैं कि सब हम पर कृपा बनाए रखें, हम ये सेवा कर सकें, ऐसी मैं सबसे कृपा करता हूँ। मिश्रा जी, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद वृंदावन चंद्र प्रभु जी। अभी हम प्रभु जी से उनकी प्रेरणा की बातें सुन रहे थे। उन्होंने देखा कि ओमनीपोटेंट की बात हो रही है, तो हम भी अपनी जो रियलाइजेशन को शेयर करें। बहुत अच्छा लगा। ग्वालपाड़ा धाम गुरु जी का जन्म स्थान ही नहीं, गुरु महाराज ने वहाँ परम गुरु महाराज जी का विग्रह स्थापना की अपने हाथों से, और वो मंदिर जो बचपन से गुरु जी शिव जी की मेडिटेशन करते थे, वो मंदिर उसी जन्म स्थान के बीच में, तीर्थेश्वर महादेव गुरु जी का जन्म स्थान वहां पे है। तो बड़ी विशेष जगह है। आज भी हम जाएं, जो लोग नहीं गए हैं वो देख लें कि अगर उन्होंने ब्रिटिश टाइम का इंडिया देखना है तो वो ग्वालपाड़ा जाएं, आज भी आपको वैसे ही दिखेगा। और मैं चाहूंगा कि अभी ये जो वायरस का प्रॉब्लम ठीक हो जाए तो हम लोग सब ग्वालपाड़ा जाएं, और आने वाले टाइम में गुरु पूर्णिमा का उत्सव होगा, तो हम गुरु पूर्णिमा पे जा सकते हैं। व्यास पूर्णिमा जो होती है उसमें कर सकते हैं। रामनवमी नहीं हो पाई, विरह तिथि नहीं हो पाई, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हमें रोज ग्वालपाड़ा धाम के दर्शन हो रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात। इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम, जूम मीटिंग के माध्यम से सब रोज गुरु जी के दर्शन कर रहे हैं ग्वालपाड़ा के। ये सबसे बड़ी विशेष कृपा है, और वही कृपा है। आज आप देखो, हमारी फ्रांस की गुरु बहन जो है रेवती, मैं इसको तब से देखा जब ये गुरुजी को सैन फ्रांसिस्को में मिली। बहुत ही हाईली एजुकेटेड और बहुत ही इंटेलिजेंट, और ये गुरुजी की जो यूएस टूर का कैलिफोर्निया प्रोग्राम था, तो इसको हमने बोला तो इसने वो सारा प्लान करके दिया, पहले आप यहाँ जाएं फिर वहां जाएं। तो इसको वो सेवा कहती, हरि नाम लेने से पहले गुरुजी ने मुझे ये इंपॉर्टेंट सेवा दी थी। तो कितना इसकी भावना है। और रेवती ने जो बातें कही वो बड़ी शिक्षाप्रद बातें हैं हमारे लिए, कि क्या उसने गुरुजी से कैच किया। कहती वैसे तो रेवती जो है वो कह रही है कि मैं भक्त परिवार में पैदा हुई, वृंदावन में रही, मायापुर में रही, लेकिन मेरे अंदर वो कृष्णा कॉन्शियसनेस, वो चीजें गुरुजी से मिलने के बाद ही हैं। तब तक मैं ऐसे ही संसार में फंसी रही। और कहती जब गुरुजी को मैं मिली तो वो जो सारी बातें मेरे माता पिता बचपन से हमको करवाते थे, कृष्णा कॉन्शियस की प्रैक्टिसेस, उन चीजों को मैंने रियलाइज किया गुरु महाराज जी से मिलकर। ये गुरुजी कैसी कृपा संचारित करते हैं। इससे पहले कहते वो सब कुछ कवर्ड था, और कितनी छोटी सी उसने बात बताई, लेकिन कितनी गहरी बात उसने कहा कि गुरुजी ने मुझे यहां तक गाइड किया कि तुम अपने लंबे लंबे जो नाखून हैं, इनको अगर पानी से स्पर्श कर लोगी आचमन पात्र में, तो वो आचमन पात्र को कैसे आप आचमन करोगे। तो कहते मैं जब भी नाखून काटती हूँ तो मुझे गुरुजी की ये बात याद आती है। अब देखो गुरुजी अपने बच्चे की तरह उसको समझा रही है कि नाखून काटना है क्योंकि आचमन को स्पर्श ना हो। फिर
कहती कि जैसे ही मेरे को गुरुजी ने कृपा दी हरि नाम की, मेरा पूरा जीवन ही बदल गया, सब कुछ एकदम ट्रांसफॉर्म हो गया। और उसने कहा गुरुजी ने मुझे किताब दी, ए टेस्ट ऑफ ट्रांसेंडेंस। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने इस किताब का नाम सुना होगा, ए टेस्ट ऑफ ट्रांसेंडेंस। ये जो बुक है इंग्लिश में मंडला मीडिया के द्वारा पब्लिश्ड है, इसमें परम गुरु महाराज जी के लेक्चर्स हैं। ये बुक परम गुरुजी ने दी इसको। तो कहती गुरुजी की हर बात में एक टेस्ट ऑफ ट्रांसेंडेंस है। गुरुजी की हर क्रिया में, हर शिक्षा में, हर लीला में एक ट्रांसेंडेंटल एस्पेक्ट है। तो ये बात उसने रियलाइज की लड़की ने। फिर कहती जब मैं कलकत्ता मठ में एक बार गुरुजी से प्रसाद लिया, तो गुरुजी ने इशारा किया कि तुम आके फिर मिलना। जब मैं गई गुरुजी के कमरे में, मुझे बड़ा स्पेशल लगा कि गुरु महाराज जी ने मुझे बुलाया है। तो कहते प्रसाद सब लेके चले गए। तो फिर मैं दोबारा कमरे में गई गुरुजी के पास। तो गुरुजी ने उसको क्या बोला कि ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है और इसको भगवत भजन में लगाओ। इतनी सी बात। कहती ये बात तो गुरुजी लेक्चर्स में कितनी बार कहते हैं और कितनी बार मैंने सुनी हुई है, लेकिन इसके लिए गुरुजी ने मुझे स्पेशली बुलाया। कहती मुझे यह लगता था कि गुरुजी मुझे कोई सेवा देंगे कि तुम फ्रांस में जाके एक मठ स्टार्ट करो, एक प्रचार करो, इस तरह का कुछ मेरे को आज्ञा होगी। लेकिन गुरुजी ने क्या बात कही कि ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है, इट इज वेरी रेयर। गुरुजी कहते हैं मेरे को ये बात को गहराई से समझाने की कोशिश करने के लिए गुरुजी ने बुलाया, गो डीपर। और कहती मुझे सपने में गुरु महाराज जी आए और उस दिन उसका बर्थडे था 6 जनवरी, और सपने में मेरे को गुरुजी से ये उपदेश मिल रहा है, लब्धवा, वो जो बहु तुर्नम यतेत वाला जो है कि इमीडिएटली वी शुड स्टार्ट भजन, दिस ह्यूमन लाइफ इज वेरी वेरी रियल। तो हमें तुरंत हरि गुरु वैष्णव सेवा भजन प्रारंभ कर देना चाहिए, ये मनुष्य जन्म बड़ा दुर्लभ है। ये बात स्वप्न में गुरुजी उसको बता रहे हैं। तो कहती गुरुजी मुझे सपन में भी जगाने की कोशिश कर रहे हैं, सपन में भी मुझे गुरुजी जगाने की कोशिश कर। विचार करिए। कहती वैसे तो गुरुजी के बारे में सब लोग बोल रहे हैं और समाधि के बारे में बोल रहे हैं। कहती लेकिन मेरा हृदय विदीर्ण हो जाता है, वो जो समाधि का प्रसंग याद करके मेरे से बड़ी मतलब पेन होती है, बड़ा कष्ट होता है। कहता इसलिए मैं इसको याद नहीं कर पाती। लेकिन गुरुजी ने तो लास्ट के 3 साल जो थे वो एकदम अपनी अंतरंग लीला में समाधि अवस्था में ही गुजारे, और उनके जाने के बाद अब 3 साल और हो गए। कहते हमारा तो 6 साल का सेपरेशन हो गया गुरुजी से। देखो उसकी भावना। हमें लग रहा था कि गुरुजी 3 साल पहले गए हैं, वो कह रही है 6 साल से हमारी सेपरेशन हो गई गुरुजी से। कहती उस समय जब कलकत्ता मठ में गुरुजी को सुबह व्हील चेयर में चलाते हुए कीर्तन होता था, तो इंटरनेट दर्शन के लिए मैं अर्ली मॉर्निंग जाती थी। आपको पता है कि फ्रांस की जो इंडिया का टाइम है 4.5-5 घंटे का डिफरेंस है। तो जब यहाँ सुबह के 7 बजते होंगे तो वहां सुबह के 2:30-3 बजते होंगे। तो वो उठ जाती थी और उसके इंटरनेट पे दर्शन करती थी। तो कहती कई बार क्या होता था कि मेरे मन में बड़े सवाल होते थे, तो उस समय वहां जो भक्त लोग कीर्तन करते थे, वो जो कीर्तन होता था वो मेरे क्वेश्चन का आंसर मिल जाता। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर भी कहते गुरुजी मुझे उस अवस्था में भी देते रहे। और कई बार कहते मेरी नेट कट जाती, दर्शन बंद हो जाता। कहते ये तब होता जब मैं इधर उधर ध्यान देती, फिर वापस आके जब मैं चेक करती तो फिर नेट चल पड़ती। तो इस तरह की उसने बातें की। और उसने बोला, स्पेशली मेरे कहने पे दोबारा वो बात बतलाई कि 2001 में जब
सैन फ्रांसिस्को में, सैन राफेल में एक जगह, रामदास जो प्रभु हैं, पुरी महाराज जी, वृद्ध पुरी महाराज जी के शिष्य, उनके घर में गुरु महाराज जी ठहरे थे। तो वहां पे एक प्रोग्राम हुआ, उसमें इस्कॉन के भी स्वामी आए, राधानाथ महाराज, और भी वहां के अंग्रेज स्वामी जी आए। तो वहां पे पहले गुरुजी ने राधानाथ महाराज जी को लेक्चर के लिए दिया। कहती बड़ी गुरुजी की बड़ी विनम्रता है। तो राधानंद महाराज ने कहा कि महाप्रभु की कीर्तन के बारे में बताया कि महाप्रभु कैसा कीर्तन करते थे। कहते उसके बाद गुरुजी का जब बारी आई तो गुरुजी ने कीर्तन किया, और कीर्तन करते करते गुरुजी उठे और उन्होंने जोर जोर से नृत्य करना प्रारंभ किया। कहती वो मेरी जिंदगी का पहला अभूतपूर्व अनुभव था, जब गुरुजी दोनों हाथ उठा के उछल उछल के नृत्य कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। कहती मुझे पता ही नहीं चला, मैंने शरीर पे कोई जोर नहीं दिया, मसल्स को यूज नहीं किया, लेकिन ऑटोमेटिकली मैं भी उछलना शुरू हो गया। और इतनी जोर जोर से मैं उछल रही हूं कि जब मैं ऊपर जा रही थी तो मैं नीचे गुरु महाराज जी और उनके भक्तों से घिरे हुए गुरु महाराज जी को देख सकती थी, इतना मैं ऊंचा उछल रही थी। तो कहती मुझे लगा कि कुछ अजीब नहीं है कि मैं ऐसे हो रही हूं। तो मैंने आंखें खोल के देखा बाकियों को, तो देखा सारे ही ऐसे नाच रहे थे। तो सारा घर जो था, वो कह रही थी, वो सारा घर हिल रहा था और सारे लोग जोर जोर से गुरुजी के साथ नृत्य करते नजर आए। तो इस प्रकार की भावना उसने व्यक्त की। मुझे लगता है कि हमें गुरु महाराज जी अपना संग प्रदान कर रहे हैं, अपने भक्तों के मुख से ये अपनी अंतरंग बातें इस प्रकार इस माध्यम से शेयर करवा के बड़ा हमारा सौभाग्य है। मुझे लगता है कि हमारे लिए ये लॉकडाउन भी एक ब्लेसिंग के रूप में आया, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। जब हम दुनिया की सारी चिंताओं को भुला के गुरु महिमा कीर्तन श्रवण कर पा रहे हैं। मुझे बड़े सारे भक्तों के फोन आ रहे हैं, हमारे जो यंग गुरु जी के शिष्य लोग, उनके फोन आ रहे हैं, पुराने लोगों के फोन आ रहे हैं, परम गुरु जी के शिष्यों के फोन आ रहे हैं। सब कह रहे हैं कि आप गुरु जी की कृपा से इसको चलाते रहिए, अगर ये प्रोग्राम नहीं आगे पीछे होगा तो हमारे दिल टूट जाएगा। तो इस प्रकार वो मुझे हिम्मत दे रहे हैं। कराने वाले केवल मात्र गुरु जी हैं। हमें तो लगता है कि हमारा जीवन गुरु जी की महिमा कीर्तन करते करते इतना सफल और सेफ है जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। ये जो स्पिरिचुअल ट्रांसेंडेंटल कृपा बरस रही है, इससे बड़ा मुझे लगता है लाइफ इंश्योरेंस कोई नहीं हो सकता। जैसे हमारी एक गुरु बहन ने मुझे फोन करके बतलाया कि पहले मैं न्यूज देख देख के इतनी डिप्रेशन में आ गई थी, लग रहा था कि कहीं हमें कुछ ना हो जाए, लेकिन अब ये कथा सुन के मुझे लग रहा है कि अगर हमें कुछ भी हो जाए तो गुरुजी संभाल लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं। तो ये जो बात है, देखो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इस समय सिचुएशन है, पूरी दुनिया में होड़ लगी है, बचना कैसे बचना है। लेकिन हमें गुरु महाराज ने अपने आगोश में, अपने एम्ब्रेस में ऐसे सुरक्षा कवच दे दिया कि हमें लग रहा है कि हम सेफ हैं। गुरु जी की कृपा और उनकी महिमा ही हमारे अंदर चल रही है, उनके ही स्वप्न हमें आ रहे हैं, उनकी ही बात हमें याद आ रही है। अब जैसे हमें विजय लांबा जी का फोन आ गया कि कुलदीप जी ने जो बात की, हमारे तपस्वी महाराज जी ने जो बात की, गुरु जी सर्वव्यापक है, ओमनीपोटेंट है, वो जो लेटर में भी आई बात, तो मैं भी ये बात करना चाहता हूँ। तो इस तरह सब कुछ स्फुरन हो रहे हैं। मुझे अंबाला से एक भक्त का फोन आया है, वो कहते हम भी बोलना चाहते हैं। अनजाने लोगों के फोन आ रहे हैं। तो हमारे पास टाइम ही टाइम है, हम सबको सुनेंगे। मैं चाहूंगा आप लोग भी हिम्मत करें और वॉलंटियर करें, और जो लोग गुरु जी का इस प्रसंगों को कैसेट से सुन के लिख रहे हैं, वो भी इस सेवा को अच्छे से करें। तो मुझे लगता है इससे बड़ी गुरु कृपा क्या होगी जब हमारा जीवन गुरु सेवा में लग जाएगा।
तो इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।